Hello, class 5th students. Welcome back to the mathematics subject. In the previous lecture, in the previous video, I discussed about how to write a number using Hindu-Arabic number system and using international system. Okay, now in this video, we will see that what's the relationship between the Indian and international system. Okay, suppose if 100,000 is written, then it means 1 lakh. Okay, 1 million means 10 lakh. Okay, internationally 1 million. Okay, and in Indian system what we would say 10 lakh. Okay, now 10 million means 1 crore. How much? 10 million means simply 1 crore. Okay, now 100 million means 10 crore. 1 billion means 100 crore. Okay, 10 billion means 1000 crore and 100 billion means 10,000 crore. Let us see how. Okay, 100,000 means 1 lakh. That means 100,000. Okay, 100,000 is equals to 1 lakh. Okay, 100,000 means 1 lakh. That means 100 into 1000. Simply you'll get 1 lakh. Okay, you'll get 1 lakh. Now 1 million means 10 lakh. 1 million means 10 lakh. Okay, that means 1 into 10 lakhs. 1 into 10 lakhs. Okay, that is 10 lakhs. Okay, that is nothing but 1 million. And so on. Million, 10 million, 100 million, billion, 10 billion and 100 billion. Okay, I already described you that how to write a given number using Hindu-Arabic number system and using international number system. Okay, now the concept of face value or local value. The concept of face value and place value. Okay, dear children, दो तरह की values होती हैं, place value and face value Understand? अब समझते हैं एक एक करके कि क्या place value होती है और क्या face value होती है. अब देखिए, each digit of a number has a value according to the place it occupies, starting from right to left. Okay, and this value is called its place value and it is also called local value. Dear children, कहने का मतलब ये है कि हर एक जो नंबर होता है, हर एक जो डिजिट होता है, उसके अपनी एक वैल्यू होती है उसके प्लेस के अकॉर्डिंग. जैसा कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ओके, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 4 5 6 7 1. ओके, यहाँ पर आपको ये जो नंबर दिया है 4 5 6 7 1, इसके अंदर आपको यू हैव टू फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी डिजिट. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से. ओके, द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज सिंपली 1. ओके, यूनिट डिजिट्स प्लेस. देन टेंस. ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 into 10, that is 70. ओके, तो यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है वो आपकी 10 है. ओके, पहले डिजिट में 1 थी, दूसरे डिजिट में 10, थर्ड डिजिट में सिंपली 100, देन आफ्टर 1000 एंड देन आफ्टर 10,000. आपने हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम्स के अंदर पढ़ा ही है. ओके, साथ ही आपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में भी स्टडी किया है कि जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसमें किस तरह से जो प्लेसेस की वैल्यू होती हैं वो असाइन की जाती हैं. ओके, यहाँ पर आपने देखा वंस, टेंस, 100, 1000 and 10,000. One more thing, I told in the previous video also that you have to start counting from the extreme right to the extreme left. Okay, आपको extreme right से left की तरफ जाना है काउंट करते हुए ones, tens, 100, 1000 and simply 10,000. Okay, क्योंकि आपके पास में 5 डिजिट्स हैं और आपको पता है कि यदि 5 डिजिट्स हों तो फिफ्थ डिजिट जो होता है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10,000. सिंपली अंडरस्टैंड. ओके, नाउ व्हाट अबाउट फेस वैल्यू. देखिए, जो फेस वैल्यू होती है, ईच डिजिट ऑफ अ नंबर हैज़ अ फिक्स्ड प्लेस
has a fixed value regardless of the place it occupies. Understand? And this fixed value is called this fixed value is called the face value. Okay, it is also called the true or intrinsic value. True or intrinsic value. Okay, फेस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है डियर चिल्ड्रन? जो नंबर जो डिजिट होता है वो डिजिट इटसेल्फ. ओके, द डिजिट इटसेल्फ इट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू और द इंट्रिंसिक वैल्यू और द ट्रू वैल्यू. ओके, अब आप मुझे बताइए कि 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी. क्यों? फेस का मीनिंग क्या होता है? चेहरा. 2 किसके जैसा दिखता है? 2 सिंपली मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो 2 है वो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम का एक सिंबल है. ओके, और ये जो है 2 की तरह दिखता है. अंडरस्टैंड? तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? 2. सिंपली इसे क्या कहते हैं? 2. इसका फेस, इसके फेस को हमने क्या नाम दिया है? 2. तो हम क्या कहेंगे कि जो फेस वैल्यू है 2 की वो क्या हो जाएगी? 2. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, now find face value of each digit. ओके, यहाँ पर आपके पास जितने भी डिजिट्स हैं इनकी आपको फेस वैल्यू फाइंड करनी है. तो सीधी सी बात है, 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. 3 की फेस वैल्यू हो जाएगी 3. 4 की फेस वैल्यू हो जाएगी 4. 5 की फेस वैल्यू हो जाएगी 5 एंड 6 की जो फेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 6. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग इट? वेरी इजी, नॉट मच डिफिकल्ट, वेरी इजी. ओके, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. यदि हम प्लेस वैल्यू की बात कहें, देखिए ये आपको नंबर दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6. यदि आपसे पूछा जाता है कि आप इसमें हर डिजिट की फेस वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे? हर एक नंबर को ठीक उसी तरह से लिख देंगे. तो ये हो जाएगा आपका फेस वैल्यू. ओके, फेस वैल्यू ऑफ 2 हो गया. फेस वैल्यू ऑफ 3 हो गया. 4 की 4 हो गई, 5 की 5 एंड 6 की 6. यदि हम प्लेस वैल्यू के बारे में बात करें, ओके, इफ वी टॉक अबाउट द प्लेस वैल्यू, ठीक है, अगर इसी नंबर की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है 2, 3, 4, 5, 6, तो हम एक्सट्रीम राइट से शुरू करते हुए एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जाएंगे. ओके, 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1s. 5 की 10s. ओके, 4 की 100s. 3 की 1000. ओके, एंड जो हमारा 2 है जो कि लास्ट डिजिट है, इसकी कितनी हो जाएगी? 1000. ओके, जो प्लेस वैल्यूज़ हैं वो नंबर ऑफ डिजिट्स पर डिपेंड करती है. अगर हमारे पास में 7 डिजिट्स होते तो प्लेस वैल्यू कुछ और होती 7th डिजिट की. ओके, तो ये हमने देखा फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट एंड प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट. इसी तरह आप बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं. डियर चिल्ड्रन, मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पहले ही बता दिया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है. कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है किसी पर्टिकुलर नंबर की, तो आप क्या करेंगे? उसकी प्लेस वैल्यू को असाइन कर देंगे. प्लेस वैल्यू को असाइन करने के बाद उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे लिखते चलेंगे. अंडरस्टैंड? तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंपली क्या कहेंगे चिल्ड्रन? इसे हम कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म. अंडरस्टैंड? ओके, और इन सभी को आप ऐड कर लेंगे सिंपली. ओके, 7 + 60 + 800 + 9000 + 50,000 + 2 लाख + 30 लाख + 4 करोड़ + 60 करोड़. ओके, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म. क्या होती है शॉर्ट फॉर्म? जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म. फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास में 800 है. देखिए, हमें स्पेस का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि कागज़ बहुत महंगा होता है. अंडरस्टैंड? तो यदि आपके पास में थोड़ी सी भी जगह बच जाती है तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं. ओके, 8000 + 30 + 9. ओके, तो ये तो इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म है. अब हमें अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? सिंपली इन्हें ऐड कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल
30 and 9, ओके प्लस, तो ये हो जाएगा 9, 3, 0 and 8, तो ये हो जाएगी इसकी शॉर्ट फॉर्म। अंडरस्टैंड, ये क्या हो जाएगी इस नंबर की शॉर्ट फॉर्म। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ रहा है, बड़ा ही ईजी है ये। ओके, अब हम बढ़ते हैं एस्टिमेशन की तरफ। मैंने आपको एस्टिमेशन के आई थिंक नोट्स, ठीक है, आपके पास में आ जाएंगे जल्दी, यदि नहीं आए हैं तो। ओके, अब हम देखते हैं कि एस्टिमेशन का मीनिंग क्या होता है। आप लोगों ने चिल्ड्रन देखा होगा अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, सपोज़ कि आपके घर पर कोई गेस्ट आया। कौन आया? गेस्ट, ठीक है। सपोज़ उन्होंने आपको 50 रुपीज़ दिए, अंडरस्टैंड, लेकिन उन गेस्ट के साथ में एक और गेस्ट है, इन गेस्ट ने आपको कितने रुपए दिए? 48। ओके, हाउ मेनी रुपी they gave you? 48 rupees. Okay, now tell me what is the difference between the first guest and second guest money given to you. Okay, जो पहले गेस्ट ने आपको पैसे दिए थे वो 50 रुपए दिए थे, ठीक है, एग्जैक्ट 50। ओके, जो फिगर है वो एग्जैक्ट 50 है। और जो दूसरे गेस्ट हैं उन्होंने आपको 48 रुपये दिए। अब आप मुझे बताइए कि जो 50 और 48 हैं इनमें कितना बेसिकली डिफरेंस है? सिर्फ 2 रुपए का ही तो डिफरेंस है। अंडरस्टैंड, कितना डिफरेंस है? ओनली 2 रुपीज़ का डिफरेंस है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, देखिए 48 में यदि हम 2 ऐड कर दें तो 50 हो जाता है। अंडरस्टैंड, तो हम कह सकते हैं कि जो 48 है वो अप्रॉक्सीमेट कितना है? 50 रुपीज़। अंडरस्टैंड, और इसे ही हम एस्टिमेशन कहते हैं या इसे ही हम राउंड ऑफ कहते हैं। ओके, राउंड ऑफ करना, ठीक है, या फिर एस्टिमेशन करना। चलिए, यहाँ पर मैंने एक डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है एस्टिमेशन के बारे में। देयर आर मैनी सिचुएशन वेयर इट इज़ नॉट कन्वीनियंट और पॉसिबल और नेसेसरी टू गिव एन एग्जैक्ट काउंट, ठीक है। जनरली कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पर हम एक एग्जैक्ट काउंट नहीं दे पाते। अंडरस्टैंड, सो वी गिव एन अप्रॉक्सीमेट काउंट और नंबर इंस्टेड ऑफ टेलिंग द एग्जैक्ट वन। We give a number which is close to the exact number. This is called estimation, and we estimate or guess approximate values by rounding off the numbers. Understand? Students, ये एक estimation का एक short description है, आप पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। इसमें मैंने यही समझाया है कि जब आप exact count नहीं दे पाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि जब आप एग्जैक्ट काउंट नहीं दे पाते तो आप क्या कहते हैं कि एस्टिमेशन। सपोज़ कि आपके पापा ने आपको कुछ रुपए दिए, ओके, 47 रुपीज़ दिए और कहा कि भाई जा करके मार्केट से कुछ ले आओ, अपने लिए ख़रीद कर ले आओ। तो जब आप घर पर जाते हैं, जब आप दोबारा घर पर जाते हैं तो मम्मी आपसे पूछते हैं कि बेटा आपने कितने पैसे खर्च किए? तो आप बोलते हैं मम्मी मैंने 50 रुपये खर्च किए। तो मम्मी बोलेंगे ठीक है, तो आपने एग्जैक्टली आपको कितने पैसे मिले थे? 47, लेकिन क्योंकि 47 में से सिर्फ 3 रुपीज़ ही तो कम थे, 3 रुपीज़ ही तो लेस थे, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपने लगभग 50 रुपये खर्च किए। अंडरस्टैंड, अब हम देखते हैं इनके कुछ रूल्स होते हैं। जो एस्टिमेशन होता है राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। ओके, हम 3 तरीके से नंबर्स का एस्टिमेशन कर सकते हैं। जो पहला एस्टिमेशन है या पहला राउंडिंग ऑफ है वो होता है नियरेस्ट टेंस। ओके, एस्टिमेटिंग और राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू दी नियरेस्ट टेंस। अंडरस्टैंड, हम इस वीडियो के अंदर एस्टिमेटिंग और राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस के बारे में बात करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स और टू द नियरेस्ट थाउजेंड। चलिए हम देखते हैं क्या होता है एस्टिमेटिंग और राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। सपोज सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो आपको एग्जामिन करने हैं डिजिट्स एट वंस प्लेस कि जो वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो कौन सा है, ठीक है। इसकी स्टेप 2 है इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज लेस देन 5 then round down or replace the ones digit by 0 and keep the others digits as they are, ठीक है। डियर चिल्ड्रन, आपको जल्दी ही नोट्स यदि नहीं मिले हैं तो मिल जाएंगे, उसमें मैंने ये तीनों स्टेप्स लिख दी हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से लेकर के आसानी से बताता हूँ कि दरअसल मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। अगर हम राउंडिंग ऑफ करते हैं नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, ओके, सपोज एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक नंबर है 53 और दूसरा नंबर है मेरे पास 57।
तो सबसे पहले अगर हमें राउंडिंग ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ और एस्टिमेट टू द नियरेस्ट टेंस। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर्स को एज इट इज़ लिख लेते हैं। ओके, पहले हम कौन से नंबर के बारे में बात करेंगे, 53 के बारे में, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट 57। ओके, पहले हम राउंडिंग ऑफ करेंगे 53 की। 53 के लिए आपको यहाँ पर स्टेप्स दे रखी हैं जो आपको जल्द ही नोट्स में मिल जाएंगी, आप उन्हें देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने किया क्या है। 53 के अंदर जो यूनिट डिजिट्स का प्लेस है उस पर आप एक स्क्वायर बना दीजिए छोटा सा, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। अब देखिए, यूनिट डिजिट्स के जो पास वाला प्लेस है वो क्या है, टेंस डिजिट का प्लेस है। अब हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, यानी कि जो टेंस का डिजिट है, यहाँ पर 53 में टेंस का डिजिट क्या है, 5, और इसका नियरेस्ट कौन सा डिजिट है, 3। तो एग्जैक्टली हम किसकी राउंडिंग ऑफ करेंगे, 3 की। अब हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि जो नियरेस्ट टेंस नंबर है क्या वो 5 से बड़ा है या वो 5 से छोटा है। आप देख सकते हैं कि जो 3 है वो 5 से छोटा है। अंडरस्टैंड, 3 इज लेसर देन 5। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो वंस डिजिट है उसे रिप्लेस कर देंगे, वंस डिजिट रिप्लेस्ड बाय 0। ओके, एंड टेंस digit remains as it is। Understand children? देखिए, जो 53 है इसमें नियरेस्ट टेंस डिजिट कौन सा है, 3, और 3 जो है वो 5 से लेस है। अंडरस्टैंड, जो 3 है वो 5 से लेस है, यानी कि जो 3 है वो 5 से छोटा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट का प्लेस है उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। देखिए, जो 3 है इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से, यानी कि 3 को अब हम 0 लिखेंगे और 5 को हम एज इट इज़ यानी कि 5 ही लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो 53 है वो राउंडिंग ऑफ होने के बाद क्या हो जाएगा, 50 ही रहेगा। अंडरस्टैंड किड्स? ओके, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जो आपका नंबर है 57, देखिए 57 में टेंस डिजिट का टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 5। ओके, 5 का नियरेस्ट कौन सा डिजिट है, 7। इट इज सिंपली 7। ओके, अब आप देखिए जो 7 है वो ग्रेटर देन 5 है। यदि ये ग्रेटर देन 5 है तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट इज रिप्लेस्ड बाय 0 अगेन। ठीक है, जो यूनिट डिजिट का प्लेस है उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, एंड जो टेंस डिजिट का प्लेस है, टेंस डिजिट इज इंक्रीमेंटेड बाय +1। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो 7 है जो कि यूनिट डिजिट का प्लेस है उसे तो हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन अब जो टेंस डिजिट का प्लेस है उसको हम 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो आपको पता है कि 5 + 1 कितना होता है, 6। तो अब हम कह सकते हैं कि 57 का नियरेस्ट टेंस जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 60। आप देखिए 3 डिजिट्स का ही तो सिर्फ फ़र्क है। अंडरस्टैंड, तो 57 किसके नियरेस्ट है, 60 के नियरेस्ट है। तो क्या हम नहीं कह सकते कि 57 जो है वो अप्रॉक्सीमेट 60 है। अंडरस्टैंड, और जो 53 है वो अप्रॉक्सीमेट कितना है, 50। आई होप चिल्ड्रन कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अंडरस्टैंड, एक बार फिर से हल्का सा डिस्कस करते हैं हम। देखिए, राउंडिंग ऑफ करनी है नियरेस्ट टेंस डिजिट की, तो सबसे पहले दोनों डिजिट्स को एज इट इज़ लिख लीजिए। उसके बाद में टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस को डिसाइड कर लीजिए। आपको पहले ही पता है कि जो टेंस प्लेस का डिजिट कौन सा है। ओके, 53 में टेंस प्लेस का डिजिट है 5 और उसका नियरेस्ट टेंस कौन सा है, 3 डिजिट, और 3 जो है वो 5 से कम है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो यूनिट डिजिट का प्लेस है यानी कि जो 3 है उसको रिप्लेस कर देंगे 0 से, और जो टेंस डिजिट का प्लेस है वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 53 जो है वो 50 के
अप्रॉक्सीमेट है, ओके, या एस्टिमेटेड है। और 57 के बारे में देखिए तो देखते हैं, जो 57 है उसमें टेंस का डिजिट तो 5 है और जो नियरेस्ट टेंस है जो कि 7 है, ओके, और 7 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट का प्लेस है उसे तो हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन जो टेंस डिजिट का प्लेस है उसको हम +1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो जो 7 है, 7 तो 0 से रिप्लेस हो जाएगा और 5 है उसमें +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 57 है वो किसके अप्रॉक्सीमेटेड है, 60 के, या जब इसका हम एस्टिमेशन करेंगे तो वो 60 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 57 की जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 57 किसके इक्विवेलेंट है, 60 के। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो पहला जो राउंडिंग ऑफ था एस्टिमेशन के अंदर, जो पहला राउंडिंग ऑफ हमने किया वो था नियरेस्ट टेंस। कौन सा था डियर चिल्ड्रन, नियरेस्ट टेंस। अब हम आगे देखेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो राउंडिंग ऑफ होती है नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 वो कैसे होती है। थैंक यू सो मच।